Okay. Oh my God, bitch. Let's. Webber, done. Oh, Oh, done बोलते Automatically, it's taking mine also now. डन बोलते दिव्या दिव्या गायब हो गई. really? चलो मेरे को भी एक्सेस मिल गया फाइनली. So let's stay with this. वो बोल भी रही थी ना, मेरा सेशन और कुछ ना हो, ऐसा कैसे? True. Is she back? No. We are live now. Yeah, we are live. Yeah, Divya is also here. Hi, मैंने तो कुछ किया भी नहीं. I think I got disconnected. कोई नहीं Divya. Divya, now we are live. So Okay. it's done. No Okay. problem with your session now. So can we begin? Yeah. Yes. Sure. Yeah. Okay, so hi everyone. Thank you for inviting me for this session on Adda. And Adda has always been very close to my heart because once upon a time I also used to contribute a lot, and now shamelessly I do not. So it's a different feeling coming here as a guest now. I am here to speak about my latest trip, a shorter trip to Kashmir, a getaway that we really needed because of all the work that was going crazy in office. So, बस थोड़ी सी दिन के लिए छोड़ दो टाइप की फीलिंग हो रही थी. जाने दो, छोड़ दो, एंड बहुत एकदम से प्लान बना, चलो लेट्स गो. यू ऑल वुड हैव हर्ड जैसे बचपन से हम प्लान्स बनाते हैं, लेट्स गो टू गोवा, लेकिन वो कभी होता नहीं है. बट दिस ट्रिप actually happened. If you give me a choice personally, कि beaches or mountains का option होगा, तो I always will choose mountains. I do not know why, but I feel a lot of peace and connected to mountains instead of beaches. So whenever anybody tell me in my lifetime कि कोई hill station या किसी mountain पे जा रहे हैं, तो trust me, I will never say no, मैं किसी के भी साथ चले जाऊंगी. Because mountains are really close to me. And I haven't found out the reason. I think प्रीति के साथ एक दो PLR करने के बाद पता चलेगा कि mountains में क्या है जो इतना पसंद है मुझे. So yes, I went to Kashmir, and as they say, heaven on earth or heaven in India definitely is Kashmir. Yes, it's so beautiful कि हम कितनी बार अपनी खुद की पिक्चर्स क्लिक करना भूल जाते थे और बस वो सीनरी वाली पिक्चर्स ही खींचते रहते थे. So the rivers, the pine trees, and it's एक अलग ही, you know, that you are in a different world वाली feeling होती है वहां पर जाकर. That you're somewhere else. You're not, and you do not want to come back to your own workplace or your home. और इतनी ठंड थी कि कुल्फी जम रही थी वहां. So unimaginable था कि मुंबई में इतनी गर्मी है, इतनी ह्यूमिडिटी, और वहां पे चिलिंग एटमॉस्फेयर है, you know. And but थोड़ी अनफॉर्चुनेट चीजें भी हुई, जैसे when we went there तो it started raining. इतनी बारिश हो रही थी कि the local people over there or our driver, he would say कि ऐसे इस मौसम में कभी नहीं होता. Like ideal season to visit Kashmir is during April to June probably. So that's the most ideal time to visit. और इस टाइम पे इतनी बारिश पता नहीं क्यों हो रही है. ऐसे हम लोग आए इसलिए हो रही है. So that was one thing. The community, the people that we met, the local people. One is it's a lot of Muslim dominated place. And one thing that I liked about them is that they're so connected and they want to promote each other. It's like
when we went on Shikara or when we went sightseeing or we wanted to buy dry fruits, so they would always say, "इस shop से लीजिए, इनका shop अच्छा है, ये शिकारा में जाइए, ये शिकारा अच्छा है." So tourism and tourists are basically people जिनकी वजह से ये चल रहा होता है वहाँ पर. Main occupation or main economy happens through the people who visit there, right? So we are kind of, when we visit Kashmir, we are kind of the bread earners for them, because whatever we pay or whatever we invest in, that is how they earn money, majorly, right? So वो एक था. Jyoti, are you here? If you would be okay to share pictures. Yeah. So जब हम फ्लाइट में जा रहे थे तो it was told not to click pictures because वो सिक्योरिटी वाला इशू बहुत ज्यादा है वहां पर, for obvious reasons that we all know. तो उसके उसके चलते lot of places that we wanted to click pictures, we could not. But I don't want to sound like a bad citizen of the country, but yes, I did click pictures while I was told not to. So this is a picture that we clicked from the flight. Not allowed wala picture hai ye. So, but click here because itna beautiful tha and I wanted to take some memories back. So click kar liya. Jyoti, you want to keep sharing pictures? Just keep browsing and I might tell you to stop wherever. So इतनी बर्फ थी वहां पर, इतनी बर्फ थी. और जब वुलन्स की बात हुई कि ओके लेट्स कैरी सम वुलन देयर, सो यू लाइक नहीं नहीं इतनी नहीं ठंडी लगेगी, यहाँ तो इतनी गर्मी हो रही है, कहाँ इतनी ठंडी लगेगी. बट so this is a place जो रोड साइड में कार रुका के बहुत ब्रीफली रुका के जहाँ फोटो क्लिक करी थी बहुत दूर से, तो थोड़ी zoomed वाली लग रही है यहाँ पे. And Vaibhav is going to scold me because इतनी गंदी फोटोग्राफी करी है मैंने. But yes, this is how it is. And most of the places, as I said, photography is not quite allowed because of the security reasons. So मैंने एक दो पिक्चर्स मिलिट्री वालों के साथ भी क्लिक करी एंड उनको सिर्फ they kept saying you're not supposed to put it on any social media or share with anybody, but I said I promise, so I want to stand with my promise and not share it with anybody. So that is there. Security level is very very high. So this is one of the gardens जो वहाँ पर था. It's called Betab Valley. So maybe a lot of people who would have seen the picture of the picture which is Betab. पुराने जमाने की एक मूवी है बेताब. उसकी शूटिंग, मुझे उसका हीरो पता है सनी देओल, बट हीरोइन नहीं पता मुझे. So this is Betab Valley and इतनी ठंड थी. हाँ जी, ये भी पुरानी नहीं है डार्लिंग, अमृता सिंह. तो या सनी देओल, तो उसकी शूटिंग पर हुई थी बेताब वैली में. जो थी नेक्स्ट, तो वहां पर शूटिंग के टाइम पे इट्स सपोजेडली अ वेरी गुड प्लेस एंड सीनरी है वहां पे बहुत सारी. बस फोटोज क्लिक करते रहो एज मैनी एज यू वांट. मतलब परेशान हो जाते हैं लोग देख देख के इतनी पिक्चर्स हैं. सो we didn't click much of our pictures, we clicked lot of pictures. This is the शिकारा एंड शिकारा राइड जो हमें पता है वो भी काफी मूवीज में पोर्ट्रेट है. उसके ऊपर द फैसिनेटिंग थिंग वाज वहां पे कुछ नेटवर्क्स नहीं चलते हैं बट स्विगी का पोस्टर था उसके ऊपर. सो आई क्लिक दैट वन कि देख लो स्विगी ऑर्डर हो सकता है यहाँ पे, बट नहीं होता है. सो वन थिंग अबाउट दैट अबाउट गोइंग टू कश्मीर इज कि वहां पे सिर्फ पोस्टपेड नंबर्स चलते हैं. You cannot have a prepaid phone, but if you're connected to Wi-Fi in your hotel, then you can get connected to
WhatsApp or emails, but you cannot make a call to your prepaid number. Only Wi-Fi related things like WhatsApp call up kar sakte ho, but otherwise kuch nahi kar sakte. So these are the shikaras, and they're so beautiful, so beautiful. If you can see the carving on the shikara, so iske andar jaake there are rooms, उनका ड्राइंग रूम होता है, डाइनिंग हॉल होता है, इतना लंबा शिकारा होगा, एंड 1 or 2 bedrooms kind of a thing in that. So yeah, this is me looking pretty on the shikara. So this is another picture. So as I said, numbers वहाँ पे बहुत limited चलते हैं because of security reasons again, and there are a lot of convoys that we used to see military वाला. ये तो airport का एक कबूतर आ गया था अंदर, so I felt so good. कबूतर कहाँ से आया था, मैंने उसकी फोटो भी खींच ली. We were waiting for the flight on the airport, so पता नहीं कुछ opening होगी वहाँ से. वैभव वो blood picture है, don't send this heart वाला emoji, बहुत blood picture था वो. This is flowers on the shikara. उन्होंने बहुत सारी pottery वगैरह भी करी हुई है, plants लगाए हुए थे वहाँ पर. So that's it. Yeah, Sheetal, you had a question. You're raising hand. मैं बस यही कहने वाली थी कि फोटो के चक्कर में कहीं did you live that moment or no, नहीं तो मतलब फोटो कैप्चर में बस. मैंने बहुत कम फोटोज खींचे हैं, जितने शायद मैंने ज्योति को भेजे हैं, मैंने उतने ही फोटोज खींचे हैं. बहुत सारे जब हम ट्रैवल करते हैं, so this is what my sis says कि मतलब हम इतना लाइक भी पहले ये सब कहाँ रहता था, लाइक अभी तो मतलब लाइव उसको देखने के बजाय ना अपन उसके ना फोटोज लेने में ज्यादा लाइक वी विल बी इनटू दैट थिंग. So I just said that. just मुझे ये लगा इसलिए. पिक्चर्स यस, जो मैंने ज्योति को भेजे या अपनी फैमिली को भेजे, मैंने उतनी ही फोटोज लिए थे, एंड यही वाले रिपीटेड है, तो उतनी ही फोटोज लिए थे. बट फ्लावर्स वर सो ब्यूटीफुल एंड द सीनरी वाज सो ब्यूटीफुल कि थोड़े बहुत तो बनते थे. मैंने वो तो क्लिक करे ही है. लाइक in my old age I really want to see Kashmir again, so photos तो क्लिक करने ही पड़ेंगे. गाने वाने गाए कि नहीं, ये हंसी वादियां? नहीं, मैं अच्छा गाती नहीं हूँ बिल्कुल, तो कुछ नहीं किया. यस, तो ये छोटी छोटी कैरियां सबने रोड साइड में अपने घर के बाहर बनाई हुई हैं, तो वो सब है. The people are hospitable there, connected. This is one of the famous gardens opposite Dal Lake. It's called the Mughal Garden. ये 7 levels पे है, मतलब steps हैं और चढ़ते रहो ऊपर, एंड हर एक लेवल पे एक फूलों की कैरियां और ऐसे वो करी हुई है. हमने बहुत सारी फोटोज यहाँ क्लिक नहीं करी बिकॉज बहुत भयंकर बारिश हो गई, तो इतनी ठंड थी कि हम बस बच के अपने कार में वापस आना चाहते थे. तो थोड़े बहुत पिक्चर्स हैं उसके, और ये आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेवल पे कुछ लिया हुआ है, और जो पानी सामने दिख रहा है उसमें फाउंटेन्स भी दिख रहे होंगे अगर थोड़ा जूम इन करोगे, तो दैट्स डल लेक देयर. वो दिख रहा होगा तो दैट्स डल लेक. एंड ठंडी से हालत खराब हो रही थी, भयंकर वाली, बट इट्स अ वेरी मैनिक्योर्ड एंड वेल मेंटेन्ड गार्डन. उनका शायद कुछ 25-30 रुपए टाइप का कुछ एंट्री फीस होता है. इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन. एक बुरी बात वहाँ पे ये है कि बस ट्रैफिक जाम लग जाता है, पता नहीं क्यों हो रहा होता है. सिग्नल्स वगैरह तो वहाँ पर है नहीं, बट जब देखो ट्रैफिक जैम हो रहा है और आगे पता ही नहीं क्यों रुके हुए हैं और घंटों घंटों खड़े हो उसी लाइन में, ट्रैफिक चल ही नहीं रहा होता बिल्कुल. सो वो बिल्कुल थोड़ी वियर्ड सी सिचुएशन है. श्रीनगर एयरपोर्ट पे आप आओगे तो आप स्मूथली जा सकते हो, बट जब आपको वापस आना होता है, इट्स अगेन मुगल गार्डन. तो एज आई सेड डिफरेंट लेवल्स पर है. यू कैन सी डिफरेंट कैरियां बनाई हुई है. ये पर्पल कलर के फ्लावर्स है, देखो ये बीच वाली कैरी में है ना, तो कहीं पे रेड फ्लावर्स है और अचानक से कहीं मल्टी कलर फ्लावर्स हैं. सो आई एम श्योर इसकी मेंटेनेंस इज गोना बी सुपर डिफिकल्ट.
एंड बट इतने रोजेस थे कि वो लाइक ये कलर भी होता है रोज का, वो कलर भी होता है, पता ही नहीं था। और साइड में रेड रोज है, उसके साइड में पिंक है, उसके साइड में येलो है, सब रोजेस इतने ब्यूटीफुल रोजेस थे, इतने बड़े बड़े साइज के, एंड उनको स्मेल करो तो एक्चुअली खुशबू आ रही होती थी। यहाँ पे तो सब आर्टिफिशियल मिलते हैं ना, जो बुके वाले होते हैं, बट वो वाले रोजेस वर एक्चुअली smelling beautiful and nice roses. Yes, वैभव को पता है, you might be giving out a lot of roses. ये एक छोटा सा आइस वाला फर्स्ट वो था। किसी ने स्कीइंग वाला रखा था, मैंने स्कीइंग नहीं करी, आई एम टोटल फट्टू इन डूइंग दैट, बट किसी ने स्कीइंग करी थी तो वहां रखा था। पीछे वो लेडी कोई दिख रही है, उसको छुपा के फोटो खींचा गया है। so, उसका वो ब्लू कलर का वो रेनकोट दिख रहा है पीछे। तो एंड आई लुक लाइक, नीचे वहाँ गमबूट्स मिलते हैं वहां पर, you can rent it out for 150 rupees or something. तो वो गमबूट्स ले सकते हो आप। एंड तो किसी का स्कीइंग इक्विपमेंट था, मैंने उसको पकड़ के खूब अच्छी सी फोटो खिंचाई। लग रहा है बिल्कुल मैंने स्कीइंग करी, पर मैंने नहीं करी थी, मुझे आती भी नहीं। द स्नो इज वेरी वेरी स्लिपरी, तो लग रहा था नीचे सही सलामत पहुंच जाए, वो बड़ी बात है। बहुत बहुत स्लिपरी था, और क्योंकि हम लोग गमबूट्स पहनते नहीं है, तो गमबूट्स पहन के चलने की आदत नहीं है, और मेरे साइज के मिले नहीं थे, तो वन साइज बिगर। दिस इज अगेन डल लेक। बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, एज वी से, जैसे हमें बताया जाता है। एंड इट्स अ 32 किलोमीटर big lake. It's spread across 32 kilometers, and main water provider for the area is Dal Lake. And hi Ajay ji, how are you? So 32 kilometer, but surprisingly its depth is, what I was told, is only 12 feet. So which is kind of surprising. So I feel कि वो horizontally expanded होगी rather than depth wise. So other part of Dal Lake it was, and इस side में वो tourist वाला protect किया हुआ है, तो शिकारास इस side नहीं आते हैं, hence beautiful. Otherwise तो थोड़ा dirty है. These are the pine trees and all the places. So वो कोनिकल होते हैं वहाँ पे सारे ट्रीज, बिकॉज ऑब्वियसली आइस फॉल है बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, बहुत ज्यादा, एज इन गर्मी के मौसम में भी बर्फ ही पड़ रही होती है। सो आई डू नॉट नो क्या सीजन है, जनवरी फरवरी में तो पता नहीं क्या ही हो रहा होता है। सो जो क्लाइमेट रिपोर्ट्स होते हैं, तो इट टू शो 3 degrees and feels like 2 degrees, तो कॉन्स्टेंटली वही होता था। तो मुझे वो टेम्परेचर देख के ही ठंडी लगने लग जाती थी कि लाइक इतनी ठंड है। दिस इज अगेन फ्रॉम द फ्लाइट, फ्लाइट में से लिया हुआ है। दिस इज व्हाइल वी वर लैंडिंग आई गेस श्रीनगर में, सो वहीं का ही है ये पिक्चर। यस, श्रीनगर। तो और काफी कम फ्लाइट्स जा रही होती है वहां पे, बिकॉज वन इज सिक्योरिटी। थोड़ी सी आफत ये थी कि वहाँ G20 समिट चल रहा था जब हम गए थे, तो मेनी प्लेसेस वर क्लोज्ड। तो मैंने सबको बोला कि एक्चुअली एक और बार आना पड़ेगा, अच्छे से घूमना है, तो ठंडी में आ गया। दिस इज याक, मिस्टर याक वाज इन द पार्क। ये बेताब वैली का ही है। सो मैंने फर्स्ट टाइम याक देखा था, तो आई गॉट सुपर एक्साइटेड। मतलब फोटोज में देखा है, बट लाइव तो दे वर चार्जिंग $50 टू टेक अ पिक्चर विद द याक। सो आई सेड फोटो तो साथ में नहीं चाहिए, बट दूर से तो ले सकते हैं। तो ही सेड हाँ यू कैन क्लिक विद परमिशन है ये वाला फोटो। ये बहुत छोटा नहीं है? हाँ, मैं भी वही। याक तो बहुत बड़े होते हैं, दे आर लाइक ह्यूज। हाँ याक, बट हाँ मे बी ये बेबी याक होगा, वो तो पूछा नहीं। क्योंकि दे यूजुअली वी कैन राइड इट राइट, तो बड़े रहते हैं। जूम कर दे, बड़ा हो जाएगा। जूम कर दो, बड़ा हो जाए।
अपने पास टेक्नोलॉजी मेरे है। को बड़ा सा लग तो नहीं, बकरा but I think अभी भी बकरा आंखें। अरे हिंदी में बता दे। नहीं, आई थिंक सही बोल रहा हूँ, बेबी आखी है वो, so बेबी आखी था वो, यस। तो वो there were only 2-3 places that we could go to. One was Gulmarg. अच्छा, फर्स्ट टाइम वाइट याक, अच्छा मैंने तो ब्लैक याक देखा ही नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम याक ही फर्स्ट टाइम देखा था। सो मेरे लिए वाइट ब्लैक ब्लैक तो मैंने सोचा ही नहीं, वाइट देख के आई वाज सुपर एक्साइटेड। तो साइज भी हमने जब बताया तभी आपको फ्लैश हुआ। नहीं तो इस साइज का नहीं पता। तो मैंने याक ही फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि तो आई हैव नेवर सीन अ याक। मैंने इनफैक्ट स्नो फर्स्ट टाइम देखी मेरी लाइफ में, सो आई वाज सो एक्साइटेड टू सी स्नो आल्सो, कि मैं नीचे बेंड कर करके आई वाज टचिंग द स्नो, कि ओके इज इट लाइक स्नो फ्लेक्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है। बट स्नो भी फर्स्ट टाइम देखी थी, यस। तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल आई वाज लाइक अ बेबी देयर, कि सो मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे, दे हैड सीन स्नो ऑलरेडी, but for me it was the first experience, so yes, I was excited about that also. ये वहीं पर कुछ रेस्टोरेंट या कुछ बनाया हुआ है अंदर ही, वहाँ एक वैली था, so उसी में कुछ रेस्टोरेंट टाइप का कुछ था, बट ट्रीज के बीच में ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा था, hence I clicked the picture. बंद था, I couldn't see any people around it, तो वहां पर कुछ ज्यादा वो नहीं था कि आई कुड सी लॉट ऑफ प्लेसेस, क्योंकि बंद था, ये अंदर से नहीं पता कैसा दिख रहा था, या सो वहां पर एक तो ये है कि यू हैव टू रियली, आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है या यू वांट टू लाइक say anything against people, so they take it very in a very bad way, because as I said, it's majorly a Muslim dominated place, so you have to be like really careful, and as I said, they all kabhi kabhi लगता है कि वो आपको you know, या ये एक मेरी बड़ी फैन मोमेंट वाली पिक्चर थी, किसी ने वहां स्नोमैन बनाया हुआ था ऑलरेडी, मैंने नहीं बनाया बिल्कुल, और हमने आई थॉट आपने इतना सुंदर कैसे बना लिया। नहीं नहीं, उसपे ये साइड के उसके वो पेड़ पौधे कान वान लगे हुए थे, उसपे हमने अपना चश्मा टिकाया और खूब सारी पिक्चर खिंचाई। तो देख के लोगों को ऐसा लग रहा है कि बस मैं नहीं बनाया हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इतना हाई था वहां, देखो मैं नहीं बनाया हुआ, बट मैंने नहीं बनाया बिल्कुल। सो बट यस, इट वाज इतनी ठंड थी, हाथ तो पूरे ठंडे हुए जा रहे थे, बट देख के ऐसा लग रहा था कि वाह मैं नहीं बनाया। कुछ लिया क्यों नहीं? हाँ, कुछ लिया नहीं क्यों नहीं? जल्दी तो। नहीं नहीं, कुछ नहीं लिया। कुछ भी नहीं लिया। ऐसी वापस आ गए हम लोग, कुछ नहीं लिया। ये तो ऐसा जबकि लग रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे याक को लिटा दिया और उसको चश्मा पहना दिया। याक को लिटा के चश्मा, अरे नहीं नहीं, बर्फ है भाई उसके ऊपर, देखो सब बनाया हुआ, नोज भी बनाई है, लकड़ी का टुकड़ा था वो लगा के नोज बनाई थी उसकी। ओह माय गॉड। अनन्या एक सुपर आइडिया दे रही है। इसकी आइसक्रीम खाया आपने इसकी वहाँ पे। आइसमैन की जूड़ी है क्या? जोड़ी भी बनाई है, हाँ हाँ, क्योंकि यस, जोड़ी भी बनाई है। देखो क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है, हाँ, तो जो हमसे पहले गए होंगे जिसने बहुत बनाया क्यूट होगा, है दिव्या, बहुत क्यूट है। स्नोमैन अंजू मौसी को बड़ा पसंद आ रहा है। मुझे तो दिव्या ज्यादा क्यूट लग रही है। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। थैंक्स। इसकी जूड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी स्नोमैन की। आज दिव्या की कैप जैसी कैप है इसकी स्नोमैन की। हाँ, और ये कोलगेट का ऐड भी हो रहा है यहाँ पर, बढ़िया। यस, कोलगेट भी उसको था। खुद को इतनी खुशी हो रही है कि मतलब मैंने बनाया नहीं और मैं फोटो खिंचा रही हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया, फोटो खिंचाई और
सेंस ऑफ बिलोंगिंग ऐसी दिखाई है कि मैंने ही बनाया, बिल्कुल मेरे हाथों से बना हुआ है। तो बहुत बहुत मजे किए यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम चढ़े थे इसके ऊपर, तो फोटो खिंचाई, अपना चश्मा लगाया, बस एक काम तो किया था, चश्मा अपना लगाया था बिल्कुल। तो हमारा ही था बस वो। ब्यूटिफिकेशन कर दिया तुमने। ब्यूटिफिकेशन बढ़िया वाला, यस। वाओ, दिस इज अगेन अ व्यू। ब्यूटीफुल। हाँ, बस वहां पे बस यही है कि सीनरी की फोटो खींचते रहो पूरे टाइम, एंड यू जस्ट वांट। और अब वो पाइन ट्रीज की हाइट देख लो नीचे से, इफ यू कैन सी एंड यू कैन इमेजिन, दे आर लाइक सुपर सुपर टॉल। मतलब अगर आप उनके पास में जाओगे ना, इतने सारे होते हैं वो। एंड थैंकफुली ये जो जंगल्स है वहां पर, सॉरी टू से बट आई एम रियली हैप्पी कि ह्यूमंस वहां तक नहीं पहुंचे हैं, वरना ये वैलीज और ये फॉरेस्ट भी अभी तक डिफॉरेस्टेशन हो चुका होता वहां का। इतना ब्यूटीफुल था वो पाइन ट्रीज, एंड इट्स लाइक इतनी अच्छी खुशबू है वहां पर सब जगह उस चीज की, जो नेचुरल एरोमाज होते हैं, जो हम आर्टिफिशियल एसेंस में ढूंढते हैं, एसेंस ऑयल और ये ऑयल और वो ऑयल, दे हैड दिस नेचुरल फ्लेवर एंड नेचुरल सेंट अराउंड, यू नो। तो लंग्स को ना, बिकॉज मैं बॉम्बे से गई हुई थी, तो लंग्स को ऐसे लग रहा था कि ट्रीट मिल गई है, यू नो, फ्रेश एयर फॉर फ्यू डेज। तो इतना इतना वाइब्रेंट था वो सब कुछ कि यू फील लाइक कहीं अच्छी जगह आया, यू नो, हैप्पी एंड स्माइल ऑल द टाइम, एंड वैसी वाली फीलिंग जो हो रही होती है। तो बहुत एक्साइटमेंट वाला था वहां पे सब कुछ कि ये शिकारा की फोटो है, नाइट व्यू ऑफ द शिकारा। तो ये सामने लाइट्स हैं, सब शिकाराज होते हैं दोनों साइड ऑफ द डल लेक बैंक्स पे, दे मेड दिस। और इसके पीछे लैंड है, वहां पे उन लोगों के घर होते हैं, एंड बिजनेस उनका शिकारा से ही चल रहा होता है। तो जो लोग वहाँ विजिट कर रहे होते हैं वो उनके शिकारा में आके रुकते हैं, एंड तो दैट वे। और ये मैंने पिक्चर लिया था, आई डोंट नो वैभव विल वैलिडेट, ही इज अ फोटोग्राफर अमंगस्ट अस। So I tried to capture the reflection of the light in the river, and one shikara was going that time. So that is how I took the picture. Yes. Sheetal has asked something. How did you plan any travel? नहीं, so मेरी एक student है, alumni, मतलब she's passed out of our course. तो उसके डैड वहां पर उन्होंने कार अरेंज करी थी, सो दैट इज हाउ वी कुड ट्रैवल, बिकॉज कश्मीर में इट्स नॉट क्वाइट सेफ टू गो अराउंड ऑन योर ओन। सो that is how we got to know. So the driver had to be very reliable because we were girls. So this is the river, and you can see the depth and the flow, and it's so beautiful around. I don't know, मैं इतनी excited हूँ बोलने में कितना beautiful है। I don't know if you can see that beauty. तो if you can see सारे forest, and बीच में से river is automatically divided, one goes to the left, one goes to the right, और बीच में एक छोटू सा island created है। तो that is how it goes, and slope पे इतने सारे trees होते हैं वहाँ सब जगह, and it's all natural plantation. It's not that किसी ने आके वहाँ plant किया हुआ है. As I said, thankfully it's not touched by humans yet. तो otherwise वो अभी तक जा चुका होता. I think we can take the questions from the chat now. Oh shit, टाइम हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। सी बोलते बोलते नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ दिव्या, अभी है टाइम। हाँ नहीं, तो I got so excited in talking about it, इसलिए पता ही नहीं चला. So overall, it was a good experience, but you have to be careful about where you're going, how you're going. So there is one thing called as ABC there, जो मुझे सबसे ज्यादा beautiful लगा. The ride to that place is very very beautiful. So ABC stands for, one is Aru Valley, ARU.
Aru Valley, one is Betab Valley, jahan shooting hui thi Betab movie, as I said, and the third one is Chandanwari. WARI, I think uska naam. So Chandanwari, that is how the ABC stands for. There is one place called as Gulmarg that we went to, jahan par what do you say, रोपवे राइड्स होती हैं, बट उसको वो गंडोला राइड्स बोलते हैं. तो मुझे पहले लगा गंडोला यहाँ कहाँ चलेगा, बिकॉज गंडोला एज पर मी इज व्हाट आई हैव हर्ड इज इन वेनिस, जहाँ वो रिवर के बीच में चलाते हैं गंडोलास, इफ यू गाइस नो. लेकिन वहां पे उसको गंडोला बोलते हैं. तो क्लाइमेट बहुत ज्यादा खराब था, तो वो 2 फेजेस में होता है, एक फेज 1 और एक फेज 2. तो हम फेज 2 तो जा नहीं पाए बिकॉज क्लाइमेट बहुत ज्यादा खराब था. बट फेज 1 वी वेंट एंड स्नो, बट बहुत बहुत भयंकर बारिश थी. सो वो एक जगह है. एक है सोनमर्ग दैट वी वेंट टू, एंड वो भी आइस एंड रिलेटेड प्लेसेस है. वहां से लेह लद्दाख एंड अमरनाथ यात्रा वहां से जाती है, वहां से शुरू होती है ऑन द वे. सो वो सारा एटमॉस्फियर, द एम्बियंस, इट वाज यू नो दैट फीलिंग. Also, I saw a lot of convoys, military convoys passing, and मैं कह रही थी अपनी फैमिली से भी कि मुझे ना अपना PLR कराना है, because I got emotional 3-4 times looking at that convoy and military people, because security is super high there. तो हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे एक मिलिट्री वाला खड़ा होता है, CRPF के जवान जिसको कहते हैं हम, and you know they have this rifles and fully loaded people, and they protect us, they're there for us, you feel secure. But at the same time मुझे वो internally बहुत emotional feel हुआ. मैं बहुत रोई वहां पर 2-3 बार. Yes, I broke down looking at those. and military convoy, उनका convoy is complete convoy, मतलब उसमें medical van भी होती है, उसमें फूड वैन भी होती है, उसमें टैंकर भी होता है, उसमें एक राइफल वाला राइफल एंड एमिनिशन वाला ट्रक होता है. देयर आर 3-4 ट्रक्स जिसमें जवान जा रहे होते हैं. सो ओवरऑल यू नो इट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी, बिकॉज आई ऑलवेज थिंक कि अगर शायद मेरी हाइट होती या मैं थोड़ी नॉर्मल होती तो मैं डेफिनेटली किसी आर्म फोर्सेस में होती. तो वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. यस, वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. तो see those people all the time, and as I said, I clicked a picture which is going to be with me forever, because I was told not to share it with anyone, and I respect that fact, because he literally said कि आप लोग जाते हो और Facebook पे अपलोड कर देते हो, which hampers the security, of course. So yes, I'm sorry, but I don't want to share that. Respecting the fact of our Indian Jawans who protect us all through, and kudos to each and every one of them that was there for us. You know, we could roam around, and एक moment ऐसा होता है वहाँ पे कि when you see this security, you feel like अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो कुछ नहीं होगा. So this for the civilians who live there under that threat, या कहीं पर कुछ पटाखे की आवाज आ रही है या कुछ हो रहा है, तो you always feel for a moment, oops, ये क्या आवाज है, you know. So that living in that moment as a civilian in that area, you know, gives us goosebumps. I had those goosebumps looking at that security and those jawans, the convoy, the common people, the always living under the radar. So मुझे शायद यहाँ बॉम्बे में अपने घर में बैठ के और रात को 1-2 बजे हम कहीं से आ रहे होते हैं या कहीं भी रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं या घूम रहे हैं फिर रहे हैं, we don't realize that fact living here. But when you go to such places, you see life is so difficult. And you know, thanks to these people, the military people who are protecting us, you know, जिसकी वजह से हम जी पा रहे हैं. So you feel that gratitude and you want to thank. And yes, the good part was जो भी convoy जा रहा था मैं सबको bye कर रही होती थी as a kid, you know, because I was super excited seeing that, and they would also return that bye, you know. So it was like, wow, they're acknowledging you, and I'm acknowledging them in my own way, saying bye to them, and they're acknowledging me that they've noticed me as a person, as a civilian.
So मैंने इतने सारे convoys और इतने सारे जवान्स को पाई कि not everybody responded yes because uh, they have to keep a face, they can't smile or acknowledge or things like that, right? Because they are on duty, so it's work for them. But for me, my excitement was, and I was telling them, oh, I want to click a picture, I want to see that. You're not allowed to do so many things there. You cannot click a picture of a convoy, and which I did not, of course. But not for my personal consumption also. I did not click a picture because, and I was told not to. So we respect that fact because ultimately, as I said, they are protecting us. So we need to respect that fact. Yeah. So yes, this is my short story of my visit. And any questions or anything? Thanks, Neha. I am an amazing storyteller. I take that as a superb compliment. Thank you so much. जा कैसे सकते हैं वहां पे, पहले बताओ। कहाँ पर? कश्मीर? कश्मीर मेरा इस बार जाने का था, लेकिन मैं नहीं गई। मुझे नहीं पता था कि आप जा रहे हो करके। आपके साथ ही चले जाती। Oh yes, but as I said, बहुत impromptu plan बना था, not very planned. So हमारी flight थी बॉम्बे से दिल्ली, because two of my friends were joining from Delhi. तो दिल्ली में रुक के फिर दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट ली थी। तो आते टाइम तो they are okay. Security checks of course बहुत ज्यादा हैं, but when you coming back from श्रीनगर, करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले दे हैव अ सिक्योरिटी चेक, जहाँ पे आपको अपना सारा लगेज सिक्योरिटी में डालना होता है। वो जैसे यू हैव टू पास थ्रू दोस मैग्नेटिक sensors and everything. Your luggage goes through the same. Then you load your luggage again. You have to put your identity proof, as in Aadhaar card preferably. All the places. You're getting into a car, you're getting into gondola ride, you're getting into the shikara, everything. You have to have your ID card on your hand all the time. Okay. वो है, बट लौटते वक्त फिर श्रीनगर में एयरपोर्ट में अगेन सिक्योरिटी चेक्स आर वेरी वेरी हाई। तो रिकमेंडेशन इज डू नॉट कैरी एनीथिंग व्हिच इज कंट्रोवर्शियल। अगर आपको बोला जा रहा है पानी की बोतल नहीं रखनी है तो डू नॉट कीप इट, बिकॉज वो सिक्योरिटी में। सो हमारे साथ ड्राइवर के साथ एक उसका वो था हेल्पर काइंड ऑफ अ थिंग। तो ही गॉट इनटू द कार कि हमें एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे वो। एंड अगेन वो अंकल के फ्रेंड, मतलब उन्होंने किसी को हेल्पर को भेजा था कि गर्ल्स हैं तो लगेज वगैरह अंदर। लेकिन सिक्योरिटी वाले ने उनको बाहर ही उतार दिया क्योंकि उनके पास टिकट नहीं था। ही वाज नॉट अ ड्राइवर, ही वाज जस्ट अ हेल्पर। सो कोई एक्स्ट्रा बंदा भी एयरपोर्ट में अलाउड नहीं है। अगर आपको कोई ड्रॉप करने आ रहा है सो इट्स अ ड्राइवर ओनली हु कैन गेट दैट, इज व्हाट आई फेल्ट। बिकॉज हमारे वाले हेल्पर को उतार दिया, अपना सामान अपने आप लेके। फिर वहां पर सिक्योरिटी चेक्स होते हैं बिफोर, आफ्टर यू गॉट द बोर्डिंग पास ऑल्सो, बिफोर यू बोर्ड द फ्लाइट। जहाँ पे वो गेट पे आप खड़े होते हो ना, जब फ्लाइट के अंदर एक्चुअली जा रहे होते हो एरोप्लेन के अंदर, अगेन एक सिक्योरिटी चेक होता है। वो आपकी पूरी फ्रिस्किंग करते हैं हाथ ऊपर करके एंड ऑल दैट। मतलब लास्ट लेवल ऑफ चेक वहां पर भी है बिफोर यू गेट इनटू अ फ्लाइट। So you have to really cooperate with the security people. No smartness कि अरे क्या है जाने दीजिए and all that. Nothing doing. मतलब वो for you, for girls, for example, आपने बेल्ट पहनी हुई जीन्स की, वो भी आपको दिखानी है कि ओके बेल्ट है आपकी, कॉइन्स है पॉकेट में, कुछ भी मैग्नेटिक कुछ है, नेल कटर है, ये है वो है, सब कुछ आपको लगेज के अंदर डालना है। और जो वो तो नॉर्मल भी होता है, बट कुछ भी I would suggest do not get smart there thinking कि हाँ ये तो चलो कोई नहीं जाने देंगे and all that, but because it hampers your security, nothing else. So best thing is to cooperate with the security people because they are for your own good. So one is that मेरी बहुत सारी जगह हमसे वो जा नहीं पाए because as you might know G20 summit चल रहा था वहाँ। So high security is an understatement. मतलब ऐसे लग रहा था पूरे कमांडोज टाइप के लोग ही आए हुए हैं वहां पर, इतना ज्यादा। तो वो रोड ब्लॉक्स किए हुए हैं बहुत जगह, hence I said ट्रैफिक जाम था बहुत प्लेसेस में। So G20 summit was turned out to be a bad idea and वो एक था। तो we really need to be very careful and cooperative is the best thing.
थोड़ा लूटते ज्यादा है वहां पर, बिकॉज आपको पता नहीं होता है क्या करना है, तो दे विल से ओ घोड़ा अगर ऊपर बर्फ है आप वहां चल नहीं पाओगे, घोड़ा विल टेक 1,000 रुपए एंड ये वो। मुझे ट्रैकिंग की आदत है थोड़ी, मैं हर साल एक या दो ट्रैक्स पे जाती हूँ, तो ऐसे नहीं हम चल लेंगे, बट दिस मतलब वो सीधा वो डबल ट्रिपल प्राइस ही मांगते हैं। सो बिकॉज एज आई सेड टूरिज्म इज देयर मेन ऑक्यूपेशन, दैट इज हाउ दे अर्न, बट यू हैव टू बी रियली गुड एट सेइंग कि नहीं हम इतने पैसे नहीं देंगे, हम इतने ही देंगे। सो वो एक है, कहीं कहीं जगह हमें लगा कि हम लुट गए, बट ठीक है। सो दे आस्क अ लॉट, यस दे आस्क अ लॉट, एंड बेहिसाब पैसे, यू नो, मतलब 500-600 के नीचे तो जैसे कुछ हो ही नहीं रहा होता वहां पे। सो वो एक है। एंड आई वांट टू शो यू ऑल, आई पिक्ड अप स्टोन्स फ्रॉम देयर, और मुझे लगा था सिक्योरिटी में मैं बाहर फेंक दी जाऊंगी, पत्थर क्यों लेके जा रहा हूँ, बट बैगेज में डाला था। सो आई पिक्ड अप दिस कलरफुल स्टोन्स, छोटे छोटे, फ्रॉम देयर एज मेमोरी एंड मोमेंटोस। सो मैंने ये कलरफुल स्टोन्स वहां से लिए। I don't know painting, but yes. So ये 4 stones I got from there. So ये मैं I know might sound तो stupid, बाय but यदि कोई बाय ट्रेन से जाता है तो सेम सिक्योरिटी होगी ना, फिर स्टेशन वगैरह पे भी उतनी सिक्योरिटी वगैरह सारी चीजें होंगी मेरे ख्याल से। तो हमारा इनिशियल प्लान था कि हम जम्मू जाएंगे पहले। जम्मू में एज आई सेड मेरी वो एलुमनाई वहाँ पे जम्मू से है, बट समहाउ हमारा मैनेज हो गया और हम कश्मीर ही चले गए। उसमें 1-2 दिन हम सबकी हालत खराब हो रही थी, बारिश बहुत हो रही थी, तो वी टुक रेस्ट, वी डिडंट गो आउट मच एक्सेप्ट फॉर ईटिंग। सो यू नो लाइट फीवर, बिकॉज क्लाइमेट चेंज है। बेसिकली हम लोग बॉम्बे से थे, या जो मेरे फ्रेंड्स दिल्ली से थे, तो इतने कोल्ड टेम्परेचर की आदत तो होती नहीं है। दिल्ली वालों को तो फिर भी होती है, हम दोनों तो यू नो कुड़कुड़ हो रही थी हमारी लिटरली। So 2 degrees and all, and snow and rain. So we just stayed back one day. But climate का you have to be like really careful, क्योंकि extreme climate हो जाता है। जैसे मनीषा जी आप भोपाल में है, तो इतनी गर्मी से एकदम ठंडी में जा रहे हो आप, तो obviously your body takes time to adjust. तो वो एक चीज है which we need to be careful. एंड होटल्स एंड ऑल रीजनेबल, मतलब किस रेट्स पे रहते हैं वहाँ पे? Hotels depend करता है, they are $2,000 per night also and $5,000 per night also. So as I said, uncle was very helpful, तो उन्होंने हमें करा दिया था। Our hotel was around 2,500 types का था वो। अच्छा, सब होटल्स में वहाँ पर हीटर्स लगे होते हैं। एवरी छोटा सा होटल से लेके बड़े से होटल्स तक एवरीबडी हैज हीटर्स। तो हमारे G20 समिट की वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे फॉर होटल्स, तो वो अंकल ने अरेंज कराया था वो सब। तो देयर वाज दिस 4 सीजन्स करके था, इट वाज नॉट अ 5 स्टार, बट सॉरी 6 सीजन्स, नॉट 4 सीजन्स, 6 सीजन्स होटल था, बट नॉर्मल होटल, बट ठीक है, अच्छा था। एज इन हीटर्स वगैरह सब जगह लगे होते हैं, जो हमें बहुत ज्यादा चाहिए होता था शाम को आके खुड़ हो रही होती है तो कंबल में घुस जाओ टाइप का। So that was good. But वंडरफुल। ABC is पहलगांव एक जगह है, वहां पर है ये ABC that I said, आरू वैली एंड ऑल। मुझे पर्सनली वे टू आरू वैली बहुत ब्यूटीफुल लगा। जो रास्ता था वहां पहुंचने का, वैली तो सेम व्यू आपको हर जगह से मिल रहा होता है, बट रास्ता जाने का सबसे ब्यूटीफुल वहां पर था। तो और कितने दिन का प्लान करें यदि जाना हो तो? at least 5 to 6 days, because as I said, एक दिन हमारी तबीयत खराब हो गई, वो सब था। एक दिन बारिश बहुत ज्यादा थी, बारिश 2-3 दिन थी, 1-2 दिन हम निकलने की कोशिश करते रहे। Do carry छाता and raincoat and good shoes. Heels और वैसे shoes तो बिल्कुल भी नहीं सोचना, because hills and all that है, तो वो तो question है। If because raincoat and umbrella में इसलिए बोल रही हूँ, because we got to know climate is very unpredictable. तो हम यहाँ से कुछ लेके नहीं गए थे, because बारिश का मौसम नहीं है। They all also said वो अंकल से when we spoke, जैसे नहीं बारिश कुछ नहीं हो रही है, बट वहां जाके फिर वो रेंट पे देते हैं छाते, यू नो, जैसे कोई गार्डन घूमना है तो वो रेंट पे देंगे, they charge 200 rupees for half an hour for the छाता। So as I said, लूटते बहुत हैं तो वो doesn't make sense. So it's better that you carry your own stuff, comfortable shoes for walking, and छोटू सा umbrella if you have, it will be very helpful. Sunglasses and woolen wear, yes, definitely.
मतलब अम्ब्रेला वाला बिजनेस कर सकते हैं वहां पे जाकर ना। बिल्कुल कर सकते हैं। माई गॉड, 250 को पता है कि भीग रही है पब्लिक, बाहर से आई है, टूरिस्ट है, उनको पता चल जाता है बिकॉज लोकलाइट तो छाता लेके घूम रहे हैं, हम जैसे पागल लोग हैं वहीं घूम रहे हैं, तो उनको पता है ये टूरिस्ट है, तो लूट लो, बस लूट लो, वैसा वाला सीन था वहाँ। और हम लोग दे भी रहे थे भाई, ठंडी में भीग के और हालत खराब होगी, तो विद दैट ना, डजंट मेक सेंस। तो हाँ, ओवरऑल इट वाज गुड। एज आई सेड, आई लव माउंटेन्स, तो मुझे तो कहीं भी जाके मजा ही आ रहा होता है। बट यस, गुड एक्सपीरियंस, गुड गेट अवे, गुड ब्रेक, वो सब था, कैचिंग अप विद फ्रेंड्स, वो सब बहुत अच्छा था। या आर वी ओवर टाइम? Thank you so much. Very, really, very, your insights and your guidance. Definitely, एक हमारी बहुत प्यारी जर्नी हो सकती है, ट्रिप हो सकती है। Yes, we should, क्योंकि मेरे को इतना वो लग रहा था, मैंने पूरी जगह देखी नहीं। we went through the way जहाँ पे सारे लोगों के बंगलोज है, गवर्नर का बंगलो, पर उससे पता है आगे जाके है वहाँ पे सिक्योरिटी, तो you have to take passes to go there। मतलब उस लेन में एंटर करने के लिए भी पास चाहिए होता है, so you can't really enter a VIP area, जैसे फारूक अब्दुल्ला का घर है, या यू नो महबूबा मुफ्ती का ऑफिस है, तो वो दूर दूर से दिखाते थे कि इस लेन के अंदर जाके वहां पर है। गवर्नर हाउस है, गवर्नर ऑफिस है, so you can't enter there without a pass, because obviously security needs to be super high. So yes, that was... Thank you, Divya, for the lovely session. Oh, thank you, Jyoti. Thank you for having me as usual. And Adda rocks as usual. जय हो रॉक, और आपकी क्या कहते हैं, योर प्रेजेंस ने तो और 4 चांद लगा दिया आज अड्डे पे। एंड थैंक यू फॉर टेकिंग अस टू दिस कश्मीर ट्रिप। अनन्या को एक सवाल है आपके लिए। तो बेटा औनिदे हेलो, क्या आपने वहाँ ठंड आइसक्रीम खाया? क्या खाया? ठंडी ठंडी आइसक्रीम क्यों नहीं खाई आपने, ये पूछ रही है। कुल्फी चंग हुई थी मेरी वहाँ पे। यस, कहवा पिया। कहवा पिया 1-2 बार। ड्राई फ्रूट्स वहाँ पे सबको पता होगा, अखरोट। हाँ मनीषा जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ अखरोट खरीदना वहाँ पे, काजू और बादाम is not Kashmir ka thing. They will sell you kaju. And some small this you'll get no blueberries, berries वगैरह वहाँ के अच्छे रहते हैं, berries। वहाँ पे खाए, चेरीज भी अच्छे थे, ब्लूबेरीज, बट अगेन दे सेल इट वेरी वेरी एक्सपेंसिव, 300-400 रुपए का एक डब्बा दे सेल, जबकि वहाँ के प्रोडक्ट है। सो ड्राई फ्रूट्स वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अखरोट खरीदना, बिकॉज वही वहाँ मिलता है। काजू इज फ्रॉम गोवा, बादाम इज नॉट फ्रॉम कश्मीर। Saffron also। बादाम इज फ्रॉम नैनीताल। आई वेंट टू नैनीताल ना, तो वहाँ गार्डन थे। और काजू आपने तो एप्पल्स गोवा ट्राई का, किए? ज्योति ने कहा। आपने एप्पल्स ट्राई किए दिव्या? क्या ट्राई किया? सॉरी, एप्पल्स, कश्मीर के सेब। एप्पल नहीं खाया, एक जगह एक बाइट खाया था बस, क्योंकि मेरे को खाने पीने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने खाना पीना ज्यादा नहीं खाया। वो सैफरन, वहाँ पे आप सैफरन में अगेन लूट सकते हो, बिकॉज आपको पता नहीं होता कौन सा ओरिजिनल है, तो वहाँ पे 50 रुपए से लेके 300-400 रुपए तक का सैफरन में मिल जाएगा। तो be very careful when you're buying saffron there. So do not go for any type of saffron. Buy it from a good store only. Yes. Okay, चलो दिव्या, दिल तो नहीं चाहता, पर we have to go to AD. Thank you everyone. Bye. Thank you Divya. Thanks for such a beautiful session. Anytime. Thank you. Bye bye. Thank you, Jyoti ji. धन्यवाद Thanks दोनों को। Farush, thank you. Bye bye.